Continuing with the series on your chapters of History Civics, this time I bring before you the chapter 10th of History, Decline and Disintegration of the Mughal Empire. If you want to know more about the Mughal Empire, I've already made 4 parts on this chapter, but in this chapter we'll be only talking about the decline and the disintegration. So let's move on. Right. Now, when you read your book, आपके पास ये दो terms आते हैं, Great Mughals and later Mughals. So what are these terms? I mean, what do you mean by these terms? Now, as you know that the Mughal Empire was started by Babur, so the Mughal rulers from Babur to Aurangzeb are known as the Great Mughals. But after the death of Aurangzeb, from Bahadur Shah I till Bahadur Shah II are known as the later Mughals. So Great Mughals are like Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and later Mughals are which are after the death of Aurangzeb, right? All right. Now in this chapter, what are we going to study? We are going to study the decline of the Mughal Empire. So before we go on to do that, let me just talk about Aurangzeb, which was the ruler at that time. Now Aurangzeb का जो अगर हम उनका time period देखें तो let me have my pointer so it will be little easy for me to do it. हाँ जी. So अगर हम उनका बच्चे time period देखें तो उनका time period है 1658 से लेके 1707 तक. Now Aurangzeb was the last powerful Mughal emperor. हालांकि आपके मन में होगा कि जब आपकी मैम ने क्लास में पढ़ाया होगा तो she must have told you about the revolt of 1857 that the last Mughal emperor at that time was Bahadur Shah II, right? So यहाँ पर बच्चे मैंने फिर आपको कहूँगी टर्म हमने किया था ग्रेट मुगल. सो ग्रेट मुगल में आपका बाबर से औरंगजेब तक है एंड दैट इज़ वाई वी कॉल औरंगजेब एज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर. सो during his reign of about 50 years, he ruled for 50 years, and उस time पे if you can just see the painted pink area, so Mughal Empire, which had started from Delhi and Agra, just see the territorial extent of this empire. But at the same time, Aurangzeb made many political blunders, which ultimately resulted in the decline of the Mughal Empire. Now, the most important question which comes to our mind is, why did the Mughal Empire decline? Now, the areas which I have kind of put them in red are the main 5 reasons. 1, the role of Aurangzeb. Number 2, weak and inefficient successors. Number 3, role of nobles. Number 4, the governors started becoming independent and the foreign invasions. But when we talk about the role of Aurangzeb, उसमें मैंने कुछ आपको सब points दिए हैं क्योंकि 1, he reversed the policies of Akbar, and Aurangzeb के time पे there was revolt by Jat and Satnamis, revolt by the Sikh. He also created rift with the Rajputs and Aurangzeb's policy in Deccan, right? So this is what we are going to study in this slide, that why did Mughal Empire decline? Because of the role of Aurangzeb, weak, inefficient successors, the role played by the nobles, the governors became independent, and the foreign invasions. Right. Now this is what you can see here, the Sikhs in Punjab, the Jats, Rohilkhand, Rajputs, then the Marathas, right? So let's move on. Now, when I tell you that Aurangzeb was responsible for the decline of Mughal Empire, you may have a question that how can one person be responsible for that? Now, there are 2 reasons. 1, he reversed the policies of Akbar. Number 2, there were a lot of revolts during his time. The Jat, the Satnami, Sikh, Rajput, Marathas, all of them revolted during the time of Aurangzeb, and this became one of the reasons for the decline of Mughal Empire. Right. Now, when I told you that he reversed the policies of the Akbar, so what did he do? See, now we know that Akbar के time पर जो है कोई जजिया टैक्स भी नहीं था और अकबर के टाइम पे रिलीजियस टॉलरेशन थी. अकबर ने जो है आपका आईने आप कह सकते हो कि इफ़ आई मे जस्ट रिमेंबर दी right? So Akbar started this religion called as Din-e-Ilahi, right? मैंने ये सारा अकबर के जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसमें बात की है. तो यहाँ पर
औरंगज़ेब ने क्या किया, उन्होंने ये जो सेकुलर आइडिया है कि सब धर्मों को बराबर रखो, रिलीजियस टॉलरेशन जो है, ये पॉलिसी अकबर की उन्होंने रिवर्स कर दी। कैसे रिवर्स की? एक तो उन्होंने जजिया रीइम्पोज कर दिया ऑन द नॉन मुस्लिम्स। अब आप ये देखो कि उनके जो है, ही ऑल्सो ऑर्डर द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर टेम्पल्स. सो हिज रिवर्सल ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन by reimposing jizya, he hurt the Hindus who enjoyed an atmosphere of religious harmony under the previous Mughal rulers. राइट देखो, मैंने आपको बहुत सारी रिवोल्ट्स कही हैं, मैंने कहा है जाट, सतनामीज, सिख, राजपूत्स, राइट. सो ये हम लोग जो है एक एक करके करेंगे. जस्ट अ क्विक वन. सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर. हम लोग फर्स्ट कर रहे हैं रोल ऑफ औरंगजेब. वी हैव डन द रिवर्सल ऑफ अकबर्स पॉलिसीज. अब हम करेंगे रिवोल्ट ऑफ जाट्स एंड सतनामीज. व्हाई डिड दे रिवोल्ट? व्हाई डिड सिख रिवोल्ट? व्हाट वाज द रीजन ऑफ रिफ्ट विद द राजपूत्स एंड व्हाट वाज हिज औरंगजेब्स पॉलिसी इन डेक्कन एंड हाउ डिड दिस लीड टू द decline of the Mughal Empire. राइट. सो अब हम रिवोल्ट्स पर आ गए हैं. सबसे पहली रिवोल्ट है रिवोल्ट बाय द जाट्स एंड द सतनामीज. अब ये कौन लोग थे? बेसिकली बच्चे ये नॉर्थ इंडिया के पेजेंट कम्युनिटीज़ थे, क्योंकि इनके ऊपर जो है लैंड रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में उनको जो है बहुत ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू वाज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम देम. सो दे रिवोल्टेड. आपके मन में आएगा ये लैंड रेवेन्यू क्या होता था? इट वाज जस्ट अ टैक्स ऑन योर लैंड, और जितना आपका प्रोड्यूस था उसका परसेंटेज जो है आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स देना पड़ता था. सो ये जाट्स और सतनामीज जो है बेसिकली नॉर्थ इंडिया की पेजेंट कम्युनिटीज़ थी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था. सो दे रिवोल्टेड. अब इनकी रिवोल्ट्स जो है, व्हाट इम्पैक्ट डिड दे हैव? दे डिसरप्टेड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द ट्रेड एंड द ट्रैवल्स. Then number 2, I told you that Sikh also revolted. Now why did Sikh revolt? Now Aurangzeb, the last great Mughal emperor, he angered the Sikh by executing the 9th Guru of the Sikh, Guru Tegh Bahadur Ji. अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वन, द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी मेड द सिख मूवमेंट मिलिट्रियास्टिक, राइट, एंड बिकॉज ऑफ the martyrdom of Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Gobind Singh Ji founded the Khalsa Panth in 1699. सो ये ऐसा भी टाइम था बच्चे जहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी को बहुत सारी बैटल्स जो हैं मुगल फोर्सेस के साथ लड़नी भी पड़ी, लेकिन बाद में जो है ही वॉज इन्वाइटेड बाय औरंगजेब इन डेक्कन, बट ही कुड नॉट मीट हिम एज औरंगजेब डाइड व्हेन गुरु गोबिंद सिंह जी वॉज ऑन हिज वे टू डेक्कन. आपने एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट इसमें बताना चाहती हूँ आपको. आपने ये बुक ज़रूर सुनी होगी, ज़फ़रनामा. सो ये ज़फ़रनामा क्या है? ज़फ़रनामा जो है ये किताब लिखी गई थी गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जो है, एंड इट वाज रिटन इन पर्शियन. और इस बुक में उन्होंने औरंगज़ेब को ये लिखा था कि आप इतने ज़्यादा जुल्म क्यों कर रहे हो, एंड ही हैड ऑल्सो टोल्ड कि अगर इस तरीके के आप जो है बिहेवियर रखोगे तो मुगल एम्पायर जो है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी. सो दिस काइंड ऑफ ज़फ़रनामा वाज अ बुक रिटन by Guru Gobind Singh Ji, and it was a letter addressed to Aurangzeb in Persian, right? Just a brief input on that. Now is a rift with the Rajputs. So Satnamis को आपने नाखुश कर दिया, आपने जाट्स को नाखुश कर दिया, आपने सिखों के साथ रिवोल्ट कर दी, अब राजपूतों के साथ भी आपने रिफ्ट कर दी, because he was interfering in the internal matters of the Rajputs of Mewar, and by offending the Rajputs, the Aurangzeb provoked them to revolt. Now revolts होगी, and the last point हमने कहा था Aurangzeb's policy in Deccan. Now why was Deccan so important for Aurangzeb? Actually Deccan जो है इसको in your higher classes you'll read more about it. कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि डेक्कन के अंदर जो एक्सपेंशन औरंगजेब wanted to do, this also became one of the reasons for the decline. इसको डेक्कन पॉलिसी को उसकी कहा भी गया है कि डेक्कन was an ulcer for औरंगजेब and it led to the final decay of the Mughal Empire. सो डेक्कन में उस टाइम पे कौन से रूलर्स थे? डेक्कन जस्ट मीन्स बच्चे साउथ इंडिया, साउथ इंडियन पार्ट ऑफ इंडिया, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो मराठाज वर वेरी पावरफुल इन डेक्कन. सो मराठाज जो है दे हैड ऑक्यूपाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री पोस्ट इन द डेक्कन किंगडम्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर. बट मराठाज जो है वो सिर्फ इनके अंडर जो है बड़ी हाई पोस्ट पे काम करते थे. अहमदनगर एंड बीजापुर 2 एरियाज थे, और मराठाज जो है उनकी अपनी किंगडम नहीं थी. लेकिन
credit for setting up a great kingdom goes to the Mughal hero warrior Shivaji, right? अब औरंगज़ेब और शिवाजी की अगर हम बात करें बच्चे, एक्चुअली इस टाइम पर जो है औरंगज़ेब ने शिवाजी की भी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट किया. उनको लगा कि इसको भी मैं हरा सकता हूँ. सो व्हेन शिवाजी केम टू आगरा टू मीट औरंगज़ेब, ही वॉज इंसल्टेड एंड औरंगज़ेब ने शिवाजी को जो है इम्प्रिजन कर दिया. बट कहते हैं कि शिवाजी मैनेज टू एस्केप एंड लेटर रिन्यूड द कॉन्क्वेस्ट. शिवाजी वॉज क्राउंड एट राजगढ़. ही सेट अप an independent Maratha kingdom. So this was his first mistake, that he underestimated Shivaji. Number two, he also made the mistake of execution of his son Sambhaji. So that means from 1707 to 1705 to 1707, Aurangzeb ran from one corner to another to crush the Maratha resistance. So this was also one of his blunder. Now, conquest of Deccan kingdom of Bijapur and Golconda and the expansion of the Mughal Empire till Karnataka was a political blunder. क्यों blunder था बच्चे? क्यों Deccan policy गलत थी उनकी? गलत नहीं मैं कहूँगी, लेकिन ये जो newly conquered areas थे, they could not be administered properly. So इसका impact क्या हुआ कि जब औरंगज़ेब died in 1707, he left behind a disturbed empire troubled by frequent and popular revolts. There were military and financial resources of the empire had been depleted because of the prolonged military campaigns in Deccan, and this became one of the reason, why the Mughal empire declined. सो हमने पहला कर दिया कि रोल ऑफ औरंगज़ेब. दूसरा मैंने आपको कहा था कि औरंगज़ेब के बाद भी जो उनके सक्सेसर्स हैं, दे वर वीक एंड इनएफिशिएंट. नाउ वी नो बच्चे, मैंने लास्ट लाइन में आपको बोला कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब ही लेफ्ट अ डिस्टर्ब्ड एम्पायर ट्रबल्ड बाय फ्रीक्वेंट एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स. सो अब अगर इनके अगले वाले जो सक्सेसर्स हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होते, दे कुड हैव मैनेज, बट बिकॉज दे वर वीक एंड इनएफिशिएंट, they could not stop the administrative decay. There were frequent revolts and financial crises that resulted in the ultimate decline of the Mughal Empire. देखो कुछ rulers, I can just tell you, after Aurangzeb it was Bahadur Shah I, then there was Farrukh Siyar, then there was Muhammad Shah, also nicknamed as Muhammad Shah Rangila. So आप जान सकते हो, he was a very fun kind of ruler who was not bothered about the people, but he lived a very luxurious life, right? So this is number two, inefficient successors after the death of Aurangzeb who could not take control of the administrative decay. राइट. तीसरा है बच्चे नोबिलिटी. अब नोबिलिटी क्या होती है? नोबिलिटी मीन्स जो आपके इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं. नाउ व्हेन आपका जो है मुगल एम्पायर वीक हो गई, एंड व्हाट कुड हैव इम्पैक्टेड? इम्पैक्ट वाज दैट नाउ द नोबल्स बिकेम पावरफुल. In fact, nobles जो हैं, they actually took advantage of all this situation, and nobles like Abdullah Khan, Hussain Ali Khan together were known as the Sayyid brothers. They became the kingmakers. कभी एक king को आपने जो है throne पे install कर दिया. If you feel that वो जो है king नहीं सही से काम कर रहा, आपने दूसरा king install कर दिया. So these nobles came to be known as the kingmakers. So you can imagine बच्चे, जब ऐसा माहौल मुगल कोर्ट का होगा तो कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ कैसे हो सकेगा. So nobles like Abdullah Khan, Hussain Ali Khan, very, very important names, known as Sayyid brothers, they became the kingmakers. They plotted conspiracies, randomly removed the puppet king, raised their rivals to the throne. Now this frequent change of rulers led to political instability and hence resulted in the loss of dedicated, experienced and loyal nobles to the Mughals. Right. Ab last point that we will be doing is that even the governors started becoming independent. So we did the role of Aurangzeb, we did the weak and inefficient successors, the role of the nobility. Now the governors were also becoming independent. Governor को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एक और नाम सुना होगा, सूबेदार. So जैसे देखो गवर्नर्स क्या होते हैं, सूबेदार या सूबा क्या होता है. जैसे आपका इंडिया जो है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, ऐसे ही मुगल किंगडम को भी उन्होंने स्टेट्स में डिवाइड किया था. स्टेट का हेड जो है, जैसे आजकल तो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, उस टाइम पे स्टेट
को सूबा का कहते थे, और सूबे का मुखिया जो है उसको सूबेदार भी कहते थे, उसको मुगल गवर्नर भी कहते थे। अब जब उन्होंने देखा, ये मुगल गवर्नर्स ने देखा कि देयर इज़ अ वीकनेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी, दे स्टार्टेड अज्यूमिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, दे स्टॉप्ड सेंडिंग रेवेन्यूज टू द मुगल कोर्ट, so there were frequent revolts by peasant and zamindars. Later they also, these later Mughals failed to stop this gradual shifting of political and economic authority into the hands of the provincial governors. अब दूसरा पार्ट जब हम इसका करेंगे इसी वीडियो में, सो आप देखोगे कि कहाँ वो गवर्नर्स थे, और गवर्नर्स ने अपने इंडिपेंडेंट हैदराबाद शुरू कर लिया, अपना जो है अवध फाउंड कर लिया। सो इसी तरीके से जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, मुगल एम्पायर हैज़ ऑलमोस्ट डिक्लाइंड, राइट। एंड ये सारे जो गवर्नर्स हैं दे हैव बिकम इंडिपेंडेंट, इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे जो है किंगडम्स शुरू कर दी थी। अब गवर्नर्स जब इंडिपेंडेंट हो गए, गवर्नर्स मुगल एम्पायर का हिस्सा नहीं रहे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? द इकोनॉमिक इम्पैक्ट एडेड टू द ग्रोइंग फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज दे वर नो longer paying any taxes to the Mughals. Right? Oops, I forgot one more point. That was the foreign invasions. This is the last point. Now see what happened. अगर मैं कहूँ कि औरंगज़ेब का रोल, नोबल्स का रोल, या आप कह सकते हो इनएफिशिएंट सक्सेसर्स का रोल, गवर्नर्स का रोल, इसके साथ साथ बच्चे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी कि दी फॉरेन इन्वेजन्स। इस टाइम पे नादिर शाह ही अटैक दिल्ली इन 1739 and Nadir Shah, he took the famous Peacock throne. It is estimated कि नादिर शाह तकरीबन 70 करोड़ रुपीस जो हैं इंडिया से लेके गए थे, और attack of Nadir Shah was followed by these plundering raids by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times. In certain books, it's also written 8 times between 1748 to 1761. So ये famous Kohinoor diamond and the Peacock throne of Shah Jahan all were taken away by Nadir Shah. So this, became the reason why Mughal Empire डिक्लाइंड। अब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब मैं इस स्लाइड से आपको समझाऊंगी। अब जैसे ही गवर्नर्स, जमींदार्स, लोकल चीफ्स ये इंडिपेंडेंट हो गए, तो हम कहते हैं मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड। अब नेक्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, एंड इट फ्रेगमेंटेड इनटू नंबर ऑफ रीजनल किंगडम्स। सो दिस वाज द इम्पैक्ट। जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई तो जो उसके गवर्नर्स थे उन्होंने छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स जो हैं वो बनाने शुरू कर दिए। सो वील स्टार्ट विद दैट वन। Now these regional kingdoms, most important were Awadh, if you can see it here, then is Bengal. देखो ये सारे areas जो हैं, जो आपके ये न्यू किंगडम्स बनी, हैदराबाद, अवध, बंगाल, जयपुर, the Jat areas, the Punjab area, then is Mysore, ये सारे areas पहले मुगल्स के अंडर थे, right? हमने जब औरंगज़ेब का मैंने आपको मैप दिखाया था, सो ये सारे एरियाज़ वर अंडर द मुगल्स। जैसे जैसे मुगल्स डिक्लाइन होते रहे, इन सब रूलर्स ने, इनके गवर्नर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। अवध के, बंगाल के, जयपुर के, भरतपुर के एरियाज़ जो हैं, जाट, सिखों के एरिया, पंजाब, मैसूर, ये सारे एरियाज़ जो हैं अब ये मुगल से अलग होके इनके अपने अपनी किंगडम्स जो हैं वो बननी शुरू हो गई। सबसे पहले है आपका हैदराबाद। हैदराबाद जो है दैट वाज फाउंडेड बाय चिनक्लिच खान एंड दैट वाज इन 1724। नाउ अब आपके मन में आएगा हु वाज दिस चिनक्लिच खान? नाउ आई हैड टोल्ड यू कि ये नोबल्स अलग हो गए थे। सो ही वाज एक्चुअली अ पावरफुल नोबल एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारुखसियार। इनको गवर्नर बनाया गया था डेक्कन का, एंड ही वाज आल्सो अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क। सो पहली हैदराबाद कर रहे हैं, इसमें हम कहते हैं दिस स्टेट वाज फाउंडेड इन 1724 बाय चिनक्लिच खान। ये कौन थे? ये फारुखसियार मुगल गवर्नर के अंडर जो है बड़े पावरफुल नोबल थे। उनको डेक्कन का गवर्नर भी बनाया गया, इनको निज़ाम उल मुल्क का टाइटल भी दिया गया। तो फिर कहाँ प्रॉब्लम हुई? व्हाट वेंट रॉन्ग? सी चिनक्लिच खान और निज़ाम उल मुल्क जो है आसिफ शाह, ही वॉज नॉट हैप्पी द वे एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड ऑन। इन्होंने देखा कि इतना मुगल कोर्ट में कन्फ्यूजन और केओस है, सो ही असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस एंड फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद।
He established a politically and economically stable state which he ruled independently. अब Hyderabad के successors came to be known as the Nizams of Hyderabad. This is very very important. कई बार आपको they can ask you to match Hyderabad and Nizams. So the rulers of Hyderabad came to be known as the Nizams of Hyderabad. Right, so we've covered one Hyderabad. Now let's cover the second one, which is Awadh. Now अवध का मैंने आपको जो बताया था, तो इसके एरियाज कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, बनारस और कुछ इसके सराउंडिंग एरियाज. यहाँ के गवर्नर का नाम क्या था? बरहम उल मुल्क सादत खान. इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस 1722 में कर दी बिकॉज ही ऑल्सो कुड फील द कन्फ्यूजन एंड वीकनेस इन द मुगल एम्पायर, द मुगल कोर्ट. सो इन्होंने भी अपने आप को यहाँ से इंडिपेंडेंट कर दिया. अवध रूलर्स वर नोन एज द पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. लखनवी कल्चर, लखनवी चिकनकारी, क्लासिकल कथक डांस, म्यूजिक, पोइट्री एंड डिलिशियस फूड, दैट इज़ वॉट अवध वॉज नोन फॉर. राइट, सो हैदराबाद में चिनक्लिज खान ने 1724 में हैदराबाद को अलग कर दिया मुगल एम्पायर से, और अवध को 1722 में बाय बरहन उल मुल्क सादत खान. अब आते हैं बंगाल. देखो बंगाल के गवर्नर उस टाइम पे कौन थे? मुर्शिद कुली खान. राइट, फ्रॉम 1717 टू 1727 इन्होंने भी अपने आप को मुगल एम्पायर से इंडिपेंडेंट कर दिया. इनके सक्सेसर्स रूल्ड बंगाल एफिशिएंटली एंड मेड इट अ प्रॉस्परस स्टेट. Now there are two very important rulers, Murshid Quli Khan and Ali Vardi Khan. They were capable Nawabs who gave Bengal a long period of peace and promoted trade and commerce. However, Bengal की problem सिर्फ ये थी कि they could not understand the power of the British East India Company, so they could not kind of understand the threat that was being posed by the British East India Company. Right, then is your Jaipur. So we've done Hyderabad, we've done Awadh, we've done Bengal, now Jaipur. Now Jaipur was also known as the state of Amber, जिसको आज हम जयपुर कहते हैं. So इनमें जो most important ruler थे, that was Jai Singh. Jai Singh had founded the state of Amber or Jaipur and made it a center of scientific learning. So कहते हैं कि Jai Singh जो है, he was quite interested in astronomy. So इन्होंने observatories बनाई थी, जंतर मंतर at Delhi, Jaipur, Mathura, Ujjain and Banaras. He had also built a Jaigarh fort. And Jaigarh fort में जो world का largest cannon है जो है, that is named as Jaiwan, is placed there. And Jaipur is also known for its pink colored buildings. Right? देखो हमने जाट्स के बारे में बात किया था. We'll just talk here also. Now Jats had attained political importance in the later 17th and 18th centuries. They were living in the regions of Delhi, Agra, Mathura and ये basically agriculture background से थे. इनका जो chief है उसका नाम था सूरज मल. And he also made an independent kingdom at Bharatpur. Now, and these Jats, they began to dominate between the two imperial cities of Delhi and Agra, right? So Jats also became important. They also became free, and their leader's name was Surajmal, and they established their independent kingdom at Bharatpur. Right? So you can just see from here these Jats, the Sikh, the Jats here, then the Awadh, then is Bengal, then here is your Hyderabad by Chinklich Khan, right? And so all these areas अब ये मुगल से हटकर इनके अपने अपनी छोटी छोटी किंगडम्स जो हैं बन गई है. हैदराबाद के सक्सेसर को हम निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद कहते हैं. बंगाल में हमने पढ़ा अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, राइट. अवध में है सादत खान, राइट. सो सिख में we'll talk about रंजीत सिंह. I'll tell you about that. Now is Sikh. Now Sikhs के टाइम पर जो है basically they occupied the areas around Punjab. Now Mughal Empire जो है after the invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah really weakened. इस सब का फ़ायदा किसने लिया? यहाँ पर रंजीत सिंह. Just a little bit, this is not in your book, this is only for your information, that Ranjit Singh belonged to Sukra Chakya Misl. So इन्होंने जो है कश्मीर, पेशावर, मुल्तान कैप्चर किया और अपनी एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट बनाई with the capital at Lahore.
नाउ रंजीत सिंह प्रेजेंस जो है उसके वजह से बच्चे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब को सबसे आखिर में अनेक्स किया, वो भी उसकी डेथ जो है 1849 के बाद। उससे पहले उन्होंने पंजाब को कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी उसको अपना एम्पायर का पार्ट नहीं बनाया था। सो रंजीत सिंह बिल्ट अप अ वेरी पावरफुल, डिसिप्लिन्ड एंड अ वेल इक्विप्ड आर्मी विद द हेल्प ऑफ द यूरोपियन इंस्ट्रक्टर्स, राइट। देन कम्स योर मैसूर, जिसका आपको दो नाम आते हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान। नाउ नेक्स्ट टू हैदराबाद, द मोस्ट important state to emerge in South India was Mysore under Hyder Ali. Now he was a brilliant administrator, army commander. He also established a well-trained army. Now Hyder Ali defeated British, Marathas and the Nizam of Hyderabad. His son Tipu Sultan was known as the Tiger of Mysore. And Tipu Sultan के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी. He was also the member of Jacobean Club of the Russian Revolution, of the French Revolution, right? We'll talk more about this. Please don't be afraid to go beyond the topics. कई बार जो है कई चीज़ें आपको ऐसी जो याद रह जाती हैं, कई बार ये जीके के एग्जाम्स में ही आ जाती है. सो टीपू सुल्तान जो है, ही वॉज द मेंबर ऑफ द जकोबियन क्लब विच वॉज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इन्होंने नया कैलेंडर बनाया, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू स्केल्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, एंड ही मेंटेन ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद ईरान, चाइना, रशिया एंड अरबिक. And British जो है, they regarded Tipu as the most dangerous enemy in India, right? Now जब आपकी book में last में there is this detail about Shivaji, we'll do that also. Now who was Shivaji and little more detail about him. So Shivaji was born in Pune in February 1627. He was brought up by his mother Jijabai. Now he started building a strong Maratha empire, and इसमें ना बच्चे थोड़ा सा मैं ये कहूँगी कि शिवाजी का रोल ये है कि taking advantage of the illness of the Bijapur's ruler, Shivaji captured the fort of Torana. He also captured Junar and Purandhar. लेकिन बाय दिस टाइम औरंगजेब को ये लगा था कि शिवाजी इज़ बिकमिंग वेरी पावरफुल, तो उन्होंने जयसिंह को भेजा था टू फाइट विद शिवाजी. सो जयसिंह डिफीटेड शिवाजी और उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो भी साइन की थी. अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर में शिवाजी को बहुत सारे फोर्ट्स जो हैं वो मुगल्स को वापस करने पड़े, और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैं औरंगजेब को इन पर्सन जो है आगरा फोर्ट में मिलूँगा. अब जब आगरा फोर्ट में आए तो फिर क्या हुआ. सो व्हेन शिवाजी केम टू मीट औरंगजेब, ही वॉज ह्यूमिलेटेड. उन्होंने बहुत उनकी बेइज्जती की, एंड ही ऑल्सो ट्राई टू लीव द कोर्ट बट ही वॉज इम्प्रिजन्ड, राइट. एंड इफ़ यू कैन जस्ट सी दिस पिक्चर, कहते हैं शिवाजी जो है बहुत बड़े बड़े, कई कहते हैं मिठाई के डब्बों में, कोई कहते हैं फूल के जो बड़े बड़ी टोकरी हैं उसमें छिपकर ही फाइनली एस्केप्ड, एंड ही वाज कॉरोनेटेड एज द किंग इन 1674. Now, there is another point which has been talked about the administration of Shivaji. देखो ये सिर्फ नाम डिफरेंट है. हमने क्या करते हैं, हम इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, राइट. ठीक है, हम इंडिया को स्टेट्स में डिवाइड करते हैं, स्टेट्स को आगे हम जो है डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट को आगे हम स्मॉल सिटीज़ या टाउन्स या विलेजेस में डिवाइड करते हैं. बिल्कुल ऐसे शिवाजी भी अपने पूरे किंगडम को प्रोविंसेस यानी कि सूबे या स्टेट्स, प्रोविंसेस को आगे परगाना विच वॉज अनदर नेम फॉर अ डिस्ट्रिक्ट, एंड ये आगे विलेज, राइट. नाउ विलेज हेडमैन वॉज नोन एज दी पटेल, और शिवाजी का जो खास उनके मिनिस्टर्स थे, दे वर कॉल्ड एज दी अष्ट प्रधान. आपका अष्ट का मतलब होता है 8, सो ही हैड 8 मिनिस्टर्स. पहला है पेशवा, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर. देन इज फॉरेन अफेयर्स का मिनिस्टर था दाबिर, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस का चिटनिस, एंड इन चार्ज ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट वॉज न्यायाधीश, राइट. इसको एक बार दोबारा से कर देते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सो उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंसेस को आगे परगानाज में, आगे विलेज में, विलेज के हेडमैन को पाटिल कहते थे. उनके जो है 8 मिनिस्टर्स थे, दैट इज वाई उसकी मिनिस्ट्री को अष्ट प्रधान कहते थे. सबसे पहले उनके प्राइम मिनिस्टर नोन एज पेशवा, फॉरेन मिनिस्टर दाबिर, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस चिट्ठियाँ देनी, चिट्ठियाँ रिसीव करनी, चिटनिस, ठीक है, और इंचार्ज ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट एज द न्यायाधीश. अब आता है बच्चे शिवाजी के आर्मी में क्या था. इन्फेंट्री विच मीन्स आपकी पैदल सेना,
कैवलरी, घोड़सवार, आर्टिलरी, गन्स एंड नेवी, राइट। अब देखो कि इतना बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन है, इतना सारी आर्मी है, तो ये सारे पैसे कहाँ से आते थे? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम? देखो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है ना बच्चे, दैट वाज द लैंड रेवेन्यू। लेट मी हैव अनदर थिंग, ओके। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, उनका जो मेन आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट वाज लैंड रेवेन्यू, एंड 2/5 ऑफ द प्रोड्यूस वाज गिवन टू स्टेट, ईदर इट कुड बी कैश और इन काइंड, राइट। नाउ शिवाजी की जो पूरी किंगडम है दैट वाज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वाज कॉल्ड एज द स्वराज्य, द अदर वाज कॉल्ड एज द मुगलई, राइट। सो यहाँ हमने इतना किया है कि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू था, उनके प्रोड्यूस का 2/5 था, और शिवाजी के किंगडम जो है दैट वाज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ना स्वराज्य का मतलब था वो एरियाज owned and controlled by the Marathas, and Mughlai wo areas which were not in the direct control of the Marathas, right? शिवाजी दो तरीके के टैक्सेस लेवी करते थे, चौथ एंड सरदेशमुखी। देखो चौथ का मतलब होता है चौथ, चौथा हिस्सा, सो इट मीन्स द क्वार्टर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। Then Sardeshmukhi, which was equivalent to 1/10 of the land revenue. So Shivaji had set up an independent Maratha state by uniting all the Marathas politically, right? So he established a powerful Maratha state. लेकिन जब शिवाजी की डेथ हुई, then what happened? So let me just talk about that. Now after the death of Shivaji, the power passed into the hands of the Peshwa or the prime ministers. That means शिवाजी के बाद जो है सारी की सारी power जो है that was in the hands of the Peshwas. Actually they held the actual power and made all the political and the military decisions. Very, very important. Pune became the capital of the Maratha kingdom. So इस टाइम पे बच्चे by 1730s Marathas had taken over the whole of Deccan. They also conquered Gujarat, Malwa, and even started raiding the North India, right? उनके जो पेशवास most important है, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, then is बाजी राव, and then is your बालाजी बाजी राव। अब ये जो जब वो दे स्टार्टेड रेडिंग इन द नॉर्थ इंडिया, तो यहाँ क्या हुआ, एक तरफ से जो है पेशवाज अपनी पावर को इंक्रीज़ कर रहे हैं बिकॉज दे कुड ऑल्सो फील कि मुगल्स की पावर जो है वो लेस हो रही है, लेकिन दूसरे तरफ से अहमद शाह अब्दाली जो है वो भी इंडिया की तरफ अटैक कर रहे थे। तो यहाँ पर एक बैटल बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं विच इज़ नोन बाय द नेम द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। दैट वॉज फॉट बिटवीन बालाजी बाजी राव द पेशवा ऑफ मराठास एंड द अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। और ये बैटल जो है बच्चे शायद जिसकी आज हम बात करते हैं रणजीत सिंह की, ये बैटल वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in this battle the Marathas were defeated, right? Now Marathas defeat at the battle was a disaster for them. They lost their army, their political prestige, but this battle gave an opportunity for Ranjit Singh to emerge as a powerful ruler in Punjab, right? So very important bache, after the death of Shivaji the power passed in the hands of the Peshwas, and Pune became the capital of the Maratha kingdom, and the three Peshwas is Balaji Vishwanath, Baji Rao, Balaji Baji Rao, right? And Marathas had to clash with the Afghan leader Ahmad Shah Abdali in the third battle of Panipat in 1761, in which they were defeated. Right now, this is what we have on the whole chapter. I've talked about the decline and disintegration of the Mughal Empire. We've also talked about the emergence of the new kingdoms. मैंने आपको जो आपका स्पेशल शिवाजी के ऊपर है वो भी पढ़ा दिया है। लास्ट टॉपिक हमारा होगा अब टर्म्स के ऊपर। सो पहला टर्म जो है दैट इज खालसा पंथ, दैट वाज अ मिलिट्री ब्रदरहुड ऑफ द सिख फाउंडेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। सूबेदार, आई टोल्ड यू ही वाज द हेड or the governor or the administrator of territory under the Mughal rule. Observatory, a place to observe the sky and the planets, right? Then is your Satnamis and Jats, dona ka aapka same hi likhoge, the peasant community of North India. Chauth, I told you, that is 1/4 of the land revenue which was paid to Mughal that was collected by the Marathas. Sardeshmukhi, 1/10 of the land revenue paid to Marathas to be safe from the plunder.
पेशवा वॉज द चीफ मिनिस्टर इन द मराठा स्टेट आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी। आपको ये दो टर्म्स अगर मुश्किल लगती हैं, आई जस्ट टेल यू। बेसिकली बच्चे, सरदेशमुखी का क्या मतलब था कि आप उसको जो है शिवाजी को, मराठास को सरदार मानते हो, द मेन आप उनको मानते हो कि एज अ प्रोटेक्टर। सो आपको जितना भी लैंड रेवेन्यू आप पे करते थे उसका 1/10 जो है आप मराठास को देते थे ताकि दे विल प्रोटेक्ट यू, right? And Chauth was 1/4 of the land revenue which was paid to the Mughals. जितना आप मुगल्स को land revenue देते थे उसका 1/4 and that was to be collected by the Marathas, right? So this is all that I have for you. It's a slightly long video, but I think I have covered all the topics. In case of any problem, do comment me and you can also request for any other video that you want. Thank you and take good care of yourself and all the best for your exams.